myself. Please mute yourselves, everybody. Mute yourself. Warm welcome to a special zonal level meeting of Zone 4, jointly with the RC Pune Downtown. Today we are having talk on eye donation and organ donation, which is a special social act that is looked upon with honor. Organ donation is a noble deed, but its power is still undervalued. On behalf of RC Manipal, I would like to extend my special welcome to President Rotarian Firoz Master of Rotary Club Pune Downtown, Secretary and members of RC Pune Downtown. Warm welcome to today's guest speaker, Rotarian Pradeep Munot, who is going to speak on eye donation and organ donation. Warm welcome to our own Rotarian DGN Rotarian Dr. Gauri for today's meeting. I welcome Zone 4's Assistant Governor Rotarian Anand Udyawar and Zonal Lieutenant Rotarian Guru Prasad Kamath for gracing the occasion. I welcome all the President, Secretaries and members of Zone 4's Rotary Club. I welcome directors, chairperson, and all members of our own club, RC Manipal. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to all of you who generously helped us to make this event come together to become a success. Today, I would like to congratulate Rotarian Dr. Girija, who will receive a certificate from Rotary International in award distribution ceremony to be held in November this year for her outstanding effort in the community service. Congratulations, ma'am. Now I would like to request President of RC Pune Downtown, Rotarian Firoz Master, to address the gathering. Dear Rotarians, am I audible? Yes. Yeah, okay, thanks. Dear Rotarians, Namaskaram. It is an honor to take part in today's deliberations on eye and organ donation campaign. Rotary Club of Pune Downtown is delighted to partner with Rotary Club Manipal on the invitation of its president, Rotarian Prashant Hegde. Setting the tone for today's topic, friends, we have all joined Rotary for serving our communities. I personally feel that donating your eyes or other organs to someone in need is our ultimate philanthropy. I believe that if you have something you no longer need, give it away. We will be recognized not only by relatives, friends, Rotarians, but by the Almighty for this gift. We need to spread the message and inspire our fellow citizens to donate. For example, I'll give you about a couple of years back, Rotary Downtown did a campaign of sticking posters for eye donation behind auto rickshaws in the city of Pune. About 1,000 auto rickshaws, 1,000 to 15 auto rickshaws were pasted with these posters. Whilst we were doing this, I got a call by one driver, auto rickshaw driver, whose father unfortunately passed away that very night, and he donated his eyes. I think we need to spread this message, and our local newspaper in Pune was kind enough to spread this message. And this message spread really, widely in all directions. I must adhere to the 2 minutes allotted to me. Therefore, but would like to make a statement that organs cannot be manufactured. They are always a gift from someone. Let's never ever forget that. Rotarians, my message to you is
Don't just leave a will, leave a part of you behind. Thank you. God bless and stay safe, everybody. Thank you, sir. Thank you for Thank you. addressing the gathering. Thank Thank you. you. Now I request Rotarian Karunakar Shetty to give a thought for the day. Sir, unmute yourself. Hello, am I Yes, audible? sir. R.C. Manipal, President, Rotarian Prashant Hegde, Secretary Sripati Pujari, and DGN Rotarian Dr. Gauri, RADC 3182, Secretary and Secretary of Pune Downtown, and all the Rotarians of Pune Down, our Assistant Governor Zone 4, Rotarian Anand Udyavar, and Zonal Lieutenant Rotarian Guru Prasad Kamath, and all the president secretaries of Zone 4 and all our Rotarians. Today's thought for the day. Without the organ donor, there is no story, no hope, no transplant. But when there is an organ donor, life springs from death, sorrow turns to hope, and a terrible loss becomes a gift. The measure of a life, after all, is not its duration, but its donation. Thank you. Yep. Thank you, sir, for sharing the thought for the day, an apt thought for the day for today's occasion. Now I request our Assistant Governor, Rotarian Anand Udyavar, to deliver introductory speech. Hello, sir, audible? Yes, yeah. President Rotarian Prashant Hegde, Secretary Sripati, DG Dr. Gauri, and all dignitary Rotarians of Rotary Manipal and our Zone 4 Rotary leaders, and President Firoz Master, Rotary Club of Pune Downtown, and President Radhika Lakshminarayan of Rotary Udupi, and today's guest speaker, Rotarian Pradeep Munhot, speaks on promotion of high donation and organ donation. And all Rotary members of Pune Downtown. Good evening all. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಆತ್ಮೀಯ ರೋಟರಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ರೋಟರಿ ಮಣಿಪಾಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೊಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಆದ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಿವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬದುಕಿಸಲು ಈ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಫರಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 2-3 ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ಗಾಗಿ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಅರಿವನ್ನು ಮೊದಲು ರೊಟೇರಿಯನ್ರಾದ ನಾವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಅದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಮಣಿಪಾಲ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು LN4 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದೇ ಕ್ಲಬ್ಬಿನೊಂದಿಗೆ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಪೂನಾ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಲಯ ಮತ್ತು ಪೂನಾ ಡೌನ್ ಟೌನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಾಹಿತಿ, ಉತ್ತಮ ಅರಿವು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಉಡುಪಿ ರೋಟರಿಯ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ರೋಟರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for sharing the thought on today's talk. Now I request Rotarian Dr. Girija to introduce today's guest speaker. Over to you. Thank you and welcome all the Rotarians. Rotarian Pradeep Munot, who is going to speak to us today, is a member of the Rotary Club of Pune Downtown. As you have seen, a very vibrant, fun-loving Rotary Club. He has been a Rotarian since 1987. That means for the last 33 years. He is in the printing business and runs the Prabhat Printing Works at Pune, which is listed in the top 100 by the Star Printers of India. It was started in 1944, nearly 4 years before Rotarian Pradeep was born, by his father, who was a freedom fighter and a social reformer. But it was improved upon to great levels by Rotarian Pradeep Munot, and now it's run by his son Alok, allowing Rotarian Pradeep Munot time to manage his many philanthropic activities. He was awarded the Seth Chimanlal Govindas Udhyam Gaurav Puraskar in 2011 for this. His interest in eye donation was kindled 40 years ago when he was a JC member and he came into contact with an ophthalmologist, Dr. N.P. Pandya, and involved himself in the Pune Blindness Society and the eye bags. Since then, he has been giving talks all over promoting eye and organ donations. He is a trustee of the Community Eye Care Foundation and received the Mana Seva Puraskar in 2018. We at Rotary Club of Manipal know him as one of the leaders of the 14-member team from Pune Downtown, who advised us so very meticulously in their unassuming way and helped us conduct the LN4 camp this January. The camp helped provide LN4 prostheses to 309 below elbow amputees. He has conducted 57 such camps and provided nearly more than 7,500 prostheses all over India, for which he was awarded the Distinguished Service Award from the Ellen Meadows Prosthetic Hand Foundation USA in 2017. Blessed with a loving family, wife Kanta, 2 daughters, Chetana and Meghana, and son Alok, and 3 grandchildren, they see his famous smile is always lights up his face. We at our club met his wife Kanta, who also helped her husband in January this year. Closely associated with and mentored by Anna Hazare sir and his freedom fighter father, he leads a very Gandhian way of life. He has no qualms eating at the same table with his workers and drivers. Compassionate and can be a true friend, said his fellow Rotarian Anil Chadha. Though belonging to an affluent class of society, they remain simple and philanthropic. He loves to read Urdu and Shairis
and has published a collection of shairis about mother. Presenting to you Rotarian Pradeep Munot, a human being to admire and emulate. Thank you. Thank you, ma'am, for introducing today's guest speaker. Over to you, sir, for the talk. Dignitaries and friends, thanks for the generous introduction, Dr. Girija-ji. Reputed poet Amrita Pritam wrote her autobiography, and the title was The Revenue Stamp. She particularly chose this title because Sardar Khushwant Singh jokingly once remarked that, "Oye, ओ तेरी जिंदगानी तो ऐथे रसीदी टिकट के पीछे लिखी जा सके." If Amrita Pritam can fit her life canvas on the back of a revenue stamp, what much should we expect? Thank you, Rotary Udupi Manipal, for giving us this opportunity to meet with the wonderful friends again. We really enjoyed working with you. I'm thankful for allowing me to speak in national language Hindi. आपकी दी हुई प्रेम से दी हुई घंटियों में से हर रोज सुबह शाम मंजुल ध्वनि गूंजती है और मणिपाल कैंप की और आप सब लोगों की मित्रों की याद ताजा करती है। आप में से जो लोग कौन बनेगा करोड़पति केबीसी देखते होंगे, उन्होंने 2-1 हफ्ते पहले एक विशेष एपिसोड देखा होगा जिसमें मोहन फाउंडेशन के डॉक्टर सुनील श्रॉफ एवं अभिनेता रितेश देशमुख को आमंत्रित किया था। ऑर्गन डोनेशन के लिए बहुत बड़ा काम ये लोग कर रहे हैं। इस महीने के रोटरी न्यूज में भी प्रमोटिंग आई डोनेशन या लेख छपा है। हम लोग पुणे में ये कार्य छोटे पैमाने पे, हमारे पैमाने पे पिछले 40 वर्षों से थोड़ा बहुत करते आ रहे हैं। अब्राहम लिंकन का एक प्रसिद्ध वचन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ। नेत्रदान अभियान भी तो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल है, और लिंकन की सूक्ति का शैल नॉट पेरिश फ्रॉम द अर्थ यह हिस्सा भी तो नेत्रदान के लिए बिल्कुल सही लगता है। नेत्रदान करने वाले नेत्रदाता का अस्तित्व इस दुनिया से नष्ट नहीं होता है, अपनी आंखों के द्वारा अंश रूप में वो बना रहता है। आंखों में तो एक आलम, आंखों में तो दुनिया है। बिल्कुल सही फरमाया है कि द वर्ल्ड ओनली एग्जिस्ट इन योर आईज। आंखों में ही आलम, दृष्टि में ही सृष्टि है। पर जो लोग दृष्टिहीन है, क्या उन अंधजनों के लिए दुनिया के कोई माने नहीं है? हेलन केलर का नाम किसने नहीं सुना होगा। बचपन में ही वे दृष्टि और श्रवण शक्ति गंवा बैठी, पर इन कमियों के बावजूद उन्होंने जो महान कार्य किया है, आज उसकी बदौलत आज भी वे प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। समस्त दुनियावासियों से हेलन केलर का कहना है कि दृष्टि का जो अनमोल वरदान आपको प्राप्त हुआ है, उसके लिए परमपिता प्रभु का आभार व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है दृष्टिहीन व्यक्ति की सहायता करना, और इस सुझाव को देने का पूरा हक हेलन केलर रखती है, क्योंकि घायल की गति घायल जाने। पुणे में एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है सिम्बॉयसिस, कोई 20,000 बच्चे वहां पे पढ़ते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स में। उनके हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बच्चों को एक बार 1 साल के लिए वर्क एक्सपीरियंस के लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया कि उस यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में जाकर सभी 20,000 बच्चों तक उन्हें आई डोनेशन अवेयरनेस का प्रोग्राम पहुंचाना था। बच्चों ने नई कल्पनाएं लगाई और एक बार एक खेल खेला गया। दर्शकों में से कुछ लोगों को मंच पर बुलाया गया, 10 लोग आए, उनकी 2 की जोड़ियां बनाई गई। उस जोड़ी में से एक की आंख पर पट्टी बांधी गई और दूसरे जोड़ीदार ने अपने अंधे बने साथी को केवल मुंह से बोलकर, स्पर्श नहीं करते हुए उसे मंच की सीढ़ियों से उतारकर हॉल के पैसेज में से ले जाकर हॉल के प्रवेश द्वार गेट तक ले जाकर वापस लाना। बहुत धमाल हुई, पूरा ऑडियंस उसमें इन्वॉल्व हो गया। इस धमाल से
उन बच्चों को कुछ हद तक इस बात का एहसास हो गया कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू लिव इन अ डार्क वर्ल्ड। क्या हम जानते भी हैं कि यह दृष्टि का वरदान जो हमें मिला है वो कितना अनमोल है। हमें 5 ज्ञानेंद्रिय मिली है, स्पर्श, रस, गंध, श्रवण एवं दृष्टि। इन 5 इंद्रियों द्वारा हर पल हम संवेदनाएं ग्रहण करते हैं और इनमें से 82% संवेदनाएं केवल दृष्टि द्वारा हम ग्रहण करते हैं और बाकी के 4 इंद्रिय मिलाकर 18% संवेदनाएं हमको भेजते हैं। दुनिया की एक बड़ी भारी जनसंख्या इस वरदान से वंचित है, वे दृष्टिहीन है। अनुमानित है कि दुनिया के 28.5 करोड़ लोग या तो अंध है या तो मंद दृष्टि वाले हैं। उनमें से 90% पीपल आर पॉपुलेशन विकासशील राष्ट्रों में से, डेवलपिंग कंट्री में से है, और दुनिया की ब्लाइंड पॉपुलेशन की, दुनिया के अंध जनसंख्या के 1/3 1/3 पॉपुलेशन भारत में बसती है। दृष्टिहीनों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इनमें से 5.1% ऐसे लोग हैं कि जिनको कॉर्निया के अपारदर्शी होने की वजह से अंधत्व आया है। कॉर्निया और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस क्या है? जैसे हमारे हाथ की घड़ी को कांच है, जैसे हमारे कार को विंडशील्ड है, वैसे आंख की पुतली के आगे एक पतला महीन पारदर्शी आवरण है, वो कॉर्निया है। जब कमरे में अंधेरा होता है तब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। जब रोशनी होती है तो प्रकाश की किरणें वस्तुओं पर पड़ के परावर्तित होकर हमारी इस कॉर्निया में से होके लेंस में से अंदर उसकी चली जाती है। लेंस उसकी प्रतिमा नेत्रपटल रेटिना पर केंद्रित करता है, फोकस करता है, और उसकी संवेदना ऑप्टिक नर्व हमारे मस्तिष्क को, ब्रेन को पहुंचाती है और देखने की क्रिया होती है। देखने की इस कड़ी का महत्वपूर्ण एंट्री पॉइंट है कॉर्निया। कारणवश अगर ये धुंधला जाए, अपारदर्शी हो जाए, तो आदमी अपनी दृष्टि गंवा बैठता है। और इस प्रकार के अंधत्व का निवारण नेत्रदान से प्राप्त कॉर्निया से करना संभव है। कॉर्निया अपारदर्शी होने के प्रमुख कारण है इन्फेक्शन, जंतु संसर्ग, इंजुरी, जख्म होना, विटामिन ए की कमी और आनुवंशिक जेनेटिक कॉजेस। नेत्रदान से प्राप्त कॉर्निया ऐसे धुंधले अपारदर्शी कॉर्निया को बिठाने पर, ये नेत्रदान से मिला हुआ कॉर्निया बिठाने के बाद उसकी जगह पे ये पारदर्शी कॉर्निया बिठाया जाता है और दृष्टि लाभ होता है। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, हक सत्य घटना है। कोमल मात्र कुछ महीने की थी उम्र की, तब उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। इसका निदान हुआ कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी और डायग्नोसिस होने के बाद उसके लिए अनुरूप कॉर्निया के लिए उसका नाम वेटिंग लिस्ट में दर्ज कराया गया। उसकी उम्र के मुताबिक कॉर्निया मिलने में करीबन 2 साल वेट करना पड़ा और उसकी एक ही आंख कॉर्निया बिठाया गया, दूसरी आंख नाकाम हो चली थी, उसको टमी आई बिठाई गई। लेकिन इस दूसरी आंख ने, जो आंख उसको मिली, उसने कोमल की जिंदगी में जो चमत्कार लाया वो इस चित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोमल को दृष्टि लाभ हुआ, अन्य बच्चियों की तरफ वो स्कूल में जाने लगी और यही कोमल आज 22 साल की युवती बनकर दुनिया की हर चुनौती का, जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम हुई। इस नन्हे बच्चे को कोमल जितना इंतजार नहीं करना पड़ा। मात्र 6 महीने की उम्र में उसकी आंख का ऑपरेशन हुआ। इसी नेत्रदाता की वजह से उसके जीवन का अंधकार हटाया गया और उसको रोशनी का, दृष्टि का लाभ हुआ। क्यों करें हम नेत्रदान? आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानकारी के मुताबिक भारत में 49 लाख लोग, 49 लाख पीपल आर ब्लाइंड ड्यू टू कॉर्नियल ओपेसिटी। कॉर्निया के विकार की वजह से इन लोगों की दृष्टि गंवा बैठे हैं और इसमें हर साल 20,000 केसेस का इजाफा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। इसमें से इस संख्या में से 90% लोग बिलो 45 ईयर्स है, यानी कि रोजगार कमाने लायक उम्र के हैं और इनके सामने who have a useful life ahead and a handicap to face। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि 60%, 60% इनमें संख्या इन लोगों की है जो बच्चे हैं और जिनकी उम्र 12 साल से कम है। अगर पर्याप्त संख्या में नेत्रदान से हमें आंखें नहीं मिल पाई तो इन बच्चों को अपनी जिंदगी अंधकार में गुजारनी पड़ेगी। जिस देश में, हमारे देश में 80 से 90 लाख लोग हर साल कालशरण होकर मृत्यु को पाते हैं, उस देश में
NPCB, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोलिंग ब्लाइंडनेस, उनके आंकड़ों के मुताबिक सन 2018-19 में देश में कुल मिलाकर पूरे देश में 68,409 आंखों का दान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब अगर एक आदमी ने 2 आंखें दी है तो 35,000 से कम लोगों ने नेत्रदान किया है। इसका मतलब यह हुआ कि हर 1000 लोगों के पीछे सिर्फ 4 लोगों के, हर 1000 लोगों को मरने वाले लोगों के पीछे 4 लोगों की आंखें दान की गई। 996 आंखें या तो जलाई गई या तो गाड़ी गई। ये अत्यंत ऐसी स्थिति है कि जहां 1 लाख ऑपरेशन की हमें सालाना गरज है, वहां 16,000 ऑपरेशन सिर्फ हो पाते हैं। ये बहुत पीड़ादायक स्थिति है। पुणे में इतने वर्षों से हमने काम करने के बाद भी पुणे का नेत्रदान का अनुपात करीब 1.5% है, यानी कि 1000 में से 14 या 15 लोगों का नेत्रदान हो पाता है। यकीनन ये दृष्टि बदलना चाहिए और बदल सकता है यदि हम सब ठान लें। और इसी के लिए ये सब प्रयोजन है कि लोगों के पास जाकर उनको आह्वान करें कि भाई इंसान बनो। श्रीलंका जैसा छोटा मुल्क अपनी गरज को, अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर बाकी बची आंखें दुनिया भर में भेजता है। ये इस पे लिखा है, गिफ्टेड बाय द पीपल ऑफ श्रीलंका टू द पीपल ऑफ जापान। और मेरा भारत महान अभी तक अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो इतनी आंखें नहीं जुटा पाता है। ये सत्य कटु है लेकिन हकीकत है और विचार करने लायक है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम अपनी आंखों का दान करने का संकल्प करिए। डोनर कार्ड हमेशा अपने साथ रखें, जो आपको ऑनलाइन मिल सकता है या तो आपका कार्ड आपका क्लब बना सकता है, जैसे हमारे क्लब ने बनाया है। इस कार्ड में नेत्र पीढ़ियों के नंबर, नेत्रदान के डूज एंड डोंट्स, उसकी जानकारी होती है। और अपने सदस्यों के नंबर दे सकते हैं जो हेल्पलाइन का काम कर सके, तो किसी को जब नेत्रदान के लिए गरज हो, आवश्यकता हो तो मेरे मित्र और साथी जीतू भाई मेहता पिछले 35 वर्षों से ये सेवा देते आ रहे हैं। वो नेत्रदान की मदद करने के लिए 24/7/365 डेज उपलब्ध रहते हैं। तो ऐसे भी आप लोगों के पास हो सकते हैं। कर्नाटक राज्य में नेत्रदान की हेल्पलाइन का नंबर 104 है। आप अपने नेत्रदान के संकल्प की जानकारी अपने कुटुंबीजनों को, अपने करीबी मित्र, रिश्तेदारों को अवगत कराएं, अपने फैमिली डॉक्टर को भी बताएं क्यों, और अपना नेत्रदान करने का जिम्मेदारी आप उनको सौंपें, क्योंकि जब हमारा नेत्रदान होगा तब हम इस दुनिया में नहीं होंगे। पर यह तो पोस्ट डेटेड चेक है। फिलहाल जमाना है क्विक ट्रांसफर, कैश एंड कैरी। इस दिशा में भी हम जरूर कुछ कर सकते हैं। जब भी हमें किसी के निधन के, किसी की मृत्यु के समाचार मिलते हैं तो हम दुख प्रकट करते हैं, आत्मपुरसी करते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें दिवंगत व्यक्ति की आंखों का दान करने के लिए अवश्य सुझाव दें। हो सकता है जिसके घर में प्रसंग हुआ है उनके दिल में ख्याल आया न हो, उस समय अगर कोई सुझाव देता है तो हमारा अनुभव है कि 99.99% केसेस में नेत्रदान अवश्य होके रहता है। अपने आसपास प्रैक्टिस करने वाले, जनरल प्रैक्टिशनर्स को, डॉक्टर्स को मिलिए, उनसे मुलाकात करिए और उनको इस मुहिम में शामिल करिए। अगर वो बात करें तो नेत्रदान करने वालों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ पे आज की मीटिंग में शामिल जितने भी लोग हैं वो अपने आप से कम ये प्रण करें कि कम से कम साल में 2 व्यक्तियों का प्रत्यक्ष नेत्रदान भी कराएंगे। अगर आप ये कर पाए तो एक बड़ा नेक काम और पुण्य का काम आप कर पाएंगे। महाराष्ट्र के डॉक्टर को 26 जून 2013 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया कि जिसमें महानगर पालिका एवं नगर पालिकाओं के डेथ सर्टिफिकेट में और उसके एप्लीकेशन आवेदन पत्र में आई डोनेशन का कॉलम डाला गया है। इसलिए इस समय अगर डेथ सर्टिफिकेट लेने के समय भी अगर डॉक्टर कोई बोल दे, कोई बता दे, तो नेत्रदान की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। मेरे 2 डॉक्टर मित्रों के बारे में मैं यहाँ बताना चाहूंगा। एक है डॉक्टर प्रेम कुमार भट्टड़, जो दौड़ में रहते हैं, पुणे से दौड़ करीब 80 किलोमीटर दूर। दूसरे है डॉक्टर करण भुल्ले, जो नेवास में रहते हैं, जो पुणे से करीबन 180 किलोमीटर दूर है। इन दोनों के गाँव के आसपास कोई आई बैंक नहीं है। ये दोनों डॉक्टर जहाँ किसी की मौत हो जाती है और उनको बुलावा आता है, फौरन अपनी गाड़ी से, अपने व्हीकल से वहां जाते हैं और आंखें निकाल के लाते हैं और पुणे के आई बैंक को भेज देते हैं। ये अपने गांव से लगभग 50-60 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तक भी ये सेवा देते हैं और पूर्णतया निःशुल्क देते हैं, मुफ्त सेवा देते हैं, जागृति कार्यक्रम भी करते हैं और सर्विस अबाउट सेल्फ का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई
कि डॉक्टर गिरिजा जी की बेटी डॉक्टर नीता कीर भी ऐसी सेवाएं मणिपाल में दे रही है और डॉक्टर लावण्य राव भी इस अभियान के प्रचार प्रसार में लगी है। आप दोनों के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नेत्रदान करवाकर आप न केवल आंखें देते हैं बल्कि किसी की अंधेरी दुनिया में अंधेरी दुनिया को इंद्रधनुष के रंगों से चमकाते हैं, सजाते हैं, या किसी प्रेमी को ताजमहल का तोहफा देते हैं तो किसी की जिंदगी में चंदा की चांदनी को भर देते हैं। शायरी में कहें तो इस मोहब्बत की यादगार ताजमहल पर जब चौधरी का चांद मुस्कुराता है, मोहब्बत की यादगार ताजमहल पर जब चौधरी का चांद मुस्कुराता है, सतरंगी धनक के रंगों की बहार जब फजा के साथ अठखेलियां खेलती है, तब ये दुनिया हसीन हो जाती है। पुणे के कोथरूड में एक अंधशाला ब्लाइंड स्कूल है। इस अंधशाला की 6 बच्चियों को अब तक दृष्टि लाभ हो पाया है और नेत्रदान के कारण ही ये संभव हो पाया है। अब देखते हैं एक फिल्म, वीडियो फिल्म जो एनडीटीवी ने नीमच इस शहर पर बनाई थी मध्य प्रदेश के, जिसको आई डोनेशन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा गया है। लेकिन मध्य छोटा सा शहर एक नई लीग बना रहा है। वो आंखें बांट रहा है। रोशनी की इस खामोश क्रांति का सिलसिला यहाँ करीब 3 दशक पहले शुरू हुआ। यहाँ के किसान जगन्नाथ को भी नीमच ने एक नई जिंदगी दी है। साल भर पहले जब अपने खेत में इसी तरह काम कर रहे थे कि अचानक एक कंकड़ उनकी आंखों में चला गया। उनकी बाईं आंख में इन्फेक्शन बढ़ता गया। उन्होंने अजमेर से उदयपुर तक के चक्कर लगाए लेकिन कोई राहत नहीं मिली। तकलीफ इतनी थी कि डॉक्टर आंख निकलवाने की सलाह देने लगे। तब जगन्नाथ को नीमच के बारे में पता चला, जहाँ किसी की दान की गई आंखें उनकी तकलीफ दूर कर सकती हैं। और हुआ कुछ ऐसा ही। नीमच के अस्पताल में इलाज कराया और जैसे ही नेत्रदान के जरिए आंखें मिली, उनकी बाईं आंख में तुरंत ट्रांसप्लांट कर दिया गया। आज जगन्नाथ उस परिवार का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिसकी वजह से उनकी दुनिया रोशन है। ये दूसरों का नेत्रदान से हमारी जिंदगी बनी है साहब। आंख तो दूसरों की आई है नेत्र, तो जब भी डॉक्टर साहब मेरे को बुलाया और मेरा आंख मिट गई मेरा। अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने की ये परंपरा नीमच में शुरू की दशकों पहले एक परिवार ने, जिसने धीरे धीरे यहाँ एक नेत्रदान क्रांति का रूप ले लिया। लेक चैरिटेबल अस्पताल में आई ट्रांसप्लांट के पूरे इंतजाम हैं और अस्पताल के लोग पूरी निष्ठा से इस काम में जुड़े हुए हैं। यहाँ से चली रोशनी की कहानियाँ दूर दूर के हिस्सों तक पहुँच रही हैं और देश के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं अपने या अपनों के लिए आँख की रंग और रोशनी की उम्मीद रखते हुए। यानी आई डोनेशन को लेकर यहाँ के आंकड़े देश के किसी भी इलाके से कहीं ज्यादा हैं। इस लिहाज से देखें तो नीमच नेत्रदान के मामले में इस देश की राजधानी कहला सकता है और अब ये आई डोनर्स का कैपिटल हर किसी के लिए प्रेरणा बन गया है, उस अभियान के लिए भी जो नेत्रदान के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए शुरू किया गया था। नीमच के लायंस और रोटरी क्लब भी इस नेक काम में लगे हुए हैं। वो सरकारी मदद का इंतजार नहीं करते। इस क्रांति को पालने पोसने में उनका भी साथ, उनका भी हिस्सा रहा है। जब कभी किसी परिवार से नेत्रदान के अनुरोध आता है तो डॉक्टरों के साथ बिना वक्त की परवाह किए निकल पड़ते हैं। या फिर जब इस क्लब को पता चलता है कि किसी के घर में किसी की मौत हुई तो वहां पहुंचकर परिवार को नेत्रदान के लिए प्रेरित करते हैं। नीमच के लोगों के लिए नेत्रदान अब जिंदगी का ही एक और पहलू है। जिस तरह जन्म मृत्यु जीवन के सच है, उसी तरह नीमच में अंतिम संस्कार से पहले अपने प्रियजन की आंखों को दान करना भी एक सच्चाई है। वो सच जो जिंदगी भर ये एहसास दिलाता रहता है कि कोई जिस्मानी तौर पर भले साथ ना हो, उसकी रूह, उसकी रोशनी हमारे साथ बनी रह सकती है। भरोसा करना चाहिए कि रोशनी के इस शहर से शुरू होगा रोशनी का एक नया सफर, वो सफर जिसमें दूसरे शहर भी शामिल होंगे, पूरा देश भी और हम आप। कर्नाटक की सीमा के बिल्कुल पास अत्यार नाम का तहसील गढ़मिलस, जिला कोल्हापुर एक छोटा सा गांव है। ये गांव भी नीमच के पदचिन्हों पर चल रहा है। अत्यार के सभी नागरिकों ने आपस में मिलकर यह तय किया है कि इस गांव में रहने वाला हर आदमी किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मरने के बाद अपनी आंखों का दान करेगा। तो इस गांव में जब भी किसी की मौत होती है तो पहला संदेशा गांव की नेत्रदान समिति को दिया जाता है और बाद में रिश्तेदारों को खबर दी जाती है। मैं आह्वान कराना चाहूंगा कि नीमच तथा अत्यार गांव से प्रेरित होकर
आप सभी अपनी सोसाइटी, अपना मोहल्ला, अपने यार दोस्त, अपनी इंडस्ट्री या व्यवसाय, उद्यम व्यवसाय के अपने संगी साथी, अपना रोटरी क्लब, इन सबको 100% नेत्रदाता ग्रुप बनाने का गंभीर प्रयास मन से करें। मेरे मित्र और साथी चंदन सूरतवाला ने ये काम पुणे में किया है। पुणे में सूरतवाला नाम के करीब 300-400 परिवार है। ये लोग जो कि गुजरात के सूरत गांव के मूल निवासी थे, इन सबको एक धागे में बांधकर हर परिवार के हर सदस्य को चंदन ने नेत्रदाता आई डोनर बना दिया है। सूरतवाला परिवार 100% आई डोनर सोसाइटी बनी है। नेत्रदाता की मृत्यु के उपरांत क्या करना है? आंखों की पलकें अगर खुली हैं तो उन्हें बंद करें। आंखों में डालने के आई ड्रॉप एक एक बूंद दोनों आंखों में डालें। थोड़ी सी रुई या पतला कपड़ा लेकर पानी में भिगोकर दोनों आंखों पर रखें। सर के नीचे छोटा तकिया रखें ताकि सर थोड़ा ऊपर उठा रहे। कमरे में अगर फैन चल रहा हो तो फैन बंद करें। डेजर्ट कूलर या एयर कंडीशनर चलने दें। आई बैंक को फोन करें। मृतक का नाम, पता, नजदीकी निशानी, अपना नाम, वो फोन नंबर दें। निर्देशित लैंडमार्क पर किसी आदमी को खड़ा करें ताकि आई बैंक की टीम आने पर समय गंवाना न पड़े ठिकाना खोजने में। नेत्रदान केवल मरणोपरांत होता है, इसलिए डेथ सर्टिफिकेट को तैयार करें। नेत्रदाता की मृत्यु के 6 से 8 घंटे तक नेत्रदान लिया जा सकता है, मगर जितनी जल्दी करेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की कॉर्निया मिलता है। इससे दृष्टि लाभ होने के संभव चांस ज्यादा पड़ता है। उम्र, लिंग, ब्लड ग्रुप या धर्म, मजहब जो भी हो, नेत्रदान हो सकता है। एक मरीज को एक ही कॉर्निया रोपित करते हैं, मतलब एक व्यक्ति की नेत्रदान से कम 2 अंधजनों को दृष्टि लाभ हो जाता है। स्लाइसिंग के टेक्निक से अधिक लोगों को भी मिल सकता है। मोटा चश्मा लगाने वाले, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज भी नेत्रदान करना संभव है। नेत्रदान करने के बाद नेत्रदाता के चेहरे पर कुछ भी फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। एब्सोल्युटली नो डिसफिगरमेंट, पता भी नहीं चलता कि नेत्रदान किया गया है। नेत्रदान लेने की प्रक्रिया को करीबन 15 से 20 मिनट का समय लगता है। मृतक ने अपने जीवन काल में यदि नेत्रदान का संकल्प प्लेज कर रखा हो तो ठीक ही है, अगर न भी किया हो तो भी नेत्रदान करवाने में कोई दिक्कत नहीं आती है। मृतक के कुटुंबीजन, कस्टोडियंस ऑफ द बॉडी, मृतक का नेत्रदान करवाने के लीगली काबिल होते हैं। आई बैंक को खबर करने पर उनकी टीम नेत्रदान लेने के लिए या तो घर पर या तो अस्पताल जहां पर आप बोलेंगे वहां पे आके नेत्रदान लेके जाती है। मृतक के शरीर को कहीं भी ले जाना नहीं पड़ता है। नेत्रदान की सेवा पूर्णतया निःशुल्क है। आंख या शरीर का कोई भी हिस्सा न तो बेचा जा सकता है न खरीदना संभव है। और जी हाँ, सभी मजहब, सभी धर्म नेत्रदान का समर्थन ही करते हैं। यस, ऑल रिलीजन्स सपोर्ट आई डोनेशन। कौन से मजहब में ऐसा बताया गया है कि दृष्टिहीन अंध व्यक्ति को दृष्टि लाभ न मिले? नेत्रदान के कारण दृष्टि लाभ पाने वालों की पुणे की सूची में जहां हम जाधव, कांबळे, वाघमारे, दानवे, ठुबे, ढवळे, सिंह, कृपलानी, बजाज, दत्तानी इन लोगों के नाम देखते हैं, वहीं पर सैयद गौस, इश्तियाक अंसारी, बाबू जमादार, नूरजहां खान, सोहेल शेख, इनके भी नाम देखते हैं। इनमें से किसी भी व्यक्ति ने मजहब के आधार पर दृष्टि लाभ को नकारा नहीं है। None of them had refused to gain eyesight in the name of religion. दृष्टि लाभ होने में अगर किसी मजहब को एतराज नहीं है तो नेत्रदान कोई करेगा तभी तो दृष्टि लाभ हो पाएगा ना। इसी वजह से अब नेत्रदाताओं की सूची में भी शेख गालिब राजा साहब, इफ़ात अंसारी ये नाम भी नजर आने लगते हैं। एक बड़ा ही सुंदर संत वचन है, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति संसारा, एक ही घड़े सब भांडे एक ही सिरजनहारा। धर्म और अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ बोला सुना जा रहा है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, करत करो प्रति एक्शन करो, नाम जपो ईश्वर का स्मरण करो और वंड जपो यानी मिल बांट कर खाओ। यही बात मदर टेरेसा ने आचरण में उतारी है। लेट एवरी एक्शन ऑफ माइंड बी समथिंग ब्यूटीफुल टू गॉड। और इन्हीं से मिलती हुई धर्म की एक सुंदर परिभाषा मैंने कहीं सुनी। धर्म है भूखे को रोटी देना और प्यासे को पानी पिलाने का काम। धर्म है अंधकार से प्रकाश की ओर
ले जाने का नाम। धर्म है इंसानियत और सद्भावना का नाम। इंसानियत, सद्भावना, प्रेम, और प्रेम की बोली तो नैनों से ही बोली जाती है ना। कौन कहता है कि मोहब्बत के ज़बां होती है, यह हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। ये निगाहें किसकी यादों में गुम है। ये निगाहें बताती हैं इनमें किसका प्यार छलकता है। इन निगाहों में अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का जज्बा है। हर किसी की निगाहें कुछ न कुछ कहती हैं। इनकी निगाहें क्या कहती हैं? आपका एक कदम किसी और की जिंदगी में आशा की किरण ला सकता है। डोनेट आइज, डोनेट लाइफ। युवा निर्माता अमित कमलापुरे ने अपने कॉलेज डेज में बनाई है। हम नेत्रों का दान मांगते हैं, डोनेट आइज। और संत कबीर कहते हैं, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगने से मरना भला, ये सतगुरु की सी। सच ही फरमाते हैं कबीर कि मांगने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, इससे बढ़कर दर्दनाक और शर्मनाक क्या हो सकता है। लेकिन किसी की मृत्यु हो जाने पर नेत्रदान और उसके आगे एक कदम बढ़कर अंगदान को मांगना जरा भी शर्मनाक नहीं, बल्कि इससे अच्छा पुण्य का काम कोई और नहीं। ये वे दान है जो अमंगल माने जाने वाले मृत्यु के प्रसंग को भी नवजीवन का मंगल उत्सव बनाते हैं। अंगदान क्या है? जिंदा अथवा मृतक शरीर में से कोई अंग या टिश्यू निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति के अंग में, शरीर में प्रतिरोपित करने की क्रिया का नाम है अंगदान। जीते जी शरीर में से एक किडनी तथा लीवर, पैंक्रियाज, हथेलियों के कुछ अंशों का दान ही संभव है। मरणोपरांत नेत्रदान, त्वचा दान तथा देहदान कर सकते हैं, और ब्रेन डेथ होने पर दोनों किडनी, हृदय, हथेलियां, पूरा का पूरा लीवर, फेफड़े, पैंक्रियाज तथा आंख, त्वचा, स्किन और अन्य टिश्यूज का दान संभव है। आमतौर पर आदमी की मृत्यु दो प्रकार से होती है, कार्डियक यानी नेचुरल डेथ, और दूसरा प्रकार है ब्रेन डेथ। कार्डियक डेथ में, नेचुरल डेथ में हृदय का काम करना बंद हो जाता है, और जैसे ही शरीर में रक्त संचार रुक जाता है, शरीर की इंद्रियां प्रत्यारोपण के काम नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में नेत्रदान, त्वचादान तथा देहदान करना संभव होता है। आई, स्किन एंड बॉडी डोनेशन। देहदान करने में यदि मृतक ने अपने जीवन काल में देहदान करने की इच्छा प्रदर्शित कर रखी हो और अस्पताल में देहदान का फॉर्म भरा हो, तो देहदान करने में कोई दिक्कत नहीं आती। त्वचादान भी नेत्रदान के जैसे ही 6 घंटों के अंदर अंदर करवाना जरूरी है। एक्सीडेंट में सर पर चोट लगने से या ब्रेन ट्यूमर या किसी अन्य बीमारी की वजह से मरीज का मस्तिष्क, ब्रेन अगर फिर से ठीक हो पाना संभव नहीं है, तब ब्रेन डेथ करार दी जाती है। मरीज वेंटिलेटर पर रखा होता है और पूरे शरीर को लाइफ सपोर्ट सिस्टम के द्वारा रक्त संचार और प्राणवायु, ऑक्सीजन से सप्लाई बराबर मिलती रहती है। मस्तिष्क के अलावा बाकी सभी अंग जीवंत एवं स्वस्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में और सिर्फ ऐसी स्थिति में ही अंगदान, ऑर्गन डोनेशन करना संभव होता है। बुझने वाली एक ज्योति 8 जिंदगियां बचाने के काबिल होती है। Let your light keep shining long after your flame burns out. Live beyond your life.
Be an organ donor and save 8 lives. ये देखा जाए तो किसी भी दिन, एनी गिवन डे, देश भर में सभी अस्पतालों में अलग अलग स्थानों पर आईसीयू यूनिट में एडमिट मरीजों में से पूरे देश में मिलाकर 10 से 12 लोग ऐसे होते हैं जिनकी ब्रेन डेथ होती है, लेकिन उनमें से बहुत कम व्यक्तियों का अंगदान, ऑर्गन डोनेशन हो पाता है। हमारे देश में अधिकतर मामलों में रोड एक्सीडेंट के कारण ब्रेन डेथ होते हैं और अनुमानित है कि दुनिया भर में सर्वाधिक रोड एक्सीडेंट भारत में होते हैं। पर इसके बावजूद हमारे देश में प्रति 10 करोड़ जनसंख्या में से केवल 5 व्यक्ति अंगदान, ऑर्गन डोनेशन करते हैं। अंगदान का रेशियो, अनुपात, जहां पोलैंड, हंगरी जैसे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में 6 पर मिलियन है, टर्की जैसी कंट्री में 1.5 पर मिलियन है, वहां हमारा अनुपात, हमारा रेशियो 0.05 पर मिलियन है। न केवल अंग बल्कि मृतक के शरीर में से टिश्यू व रक्तवाहिनी, वेंस भी काम आते हैं। हमारे कृत्रिम हाथ प्रकल्प में कई लाभार्थी ऐसे आते हैं जिनके हाथ फटने की वजह से मेडिकल एम्पुटेशन बताया जाता है। उनको अगर समय पर निरोग रक्तवाहिनी मिली होती, वेन मिली होती, तो संभव है एम्पुटेशन टल गया होता। अंगदान नहीं होने पाने की कई सारी वजह है। जिनकी ब्रेन डेथ हो चुकी होती है उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर मशीन लगी हुई रहती है। सांसों का आना जाना और हृदय का संचालन मशीन पर निर्भर होता है। सीना फूलता है और खाली होता है। सपोर्ट सिस्टम रक्तचाप को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखती है। शरीर को स्पर्श करने पर जिंदा व्यक्ति के माफिक शरीर का हल्का गर्म स्पर्श होता है, बाल बढ़ते हैं, पेशाब होता है। इन सब के कारण मरीज के कुटुंबीजन इस तथ्य को तथापि स्वीकार नहीं कर पाते कि यह व्यक्ति मृत हो चुकी है, उसमें भी अगर कम उम्र, और एक्सीडेंट केस में अक्सर कम उम्र ही होती है। इलाज तलाशे जाते हैं, यूनानी, होम्योपैथी, हर आजमाइश होती है। आध्यात्मिक और तंत्र विद्या को भी आजमाते हैं। परिवारजनों की मनोवस्था को हम समझ सकते हैं। जहां भी कहीं भी कोई भी आशा की किरण दिखाई दे तो उसका आजमाया जाना बिल्कुल लाजमी है। पर यदि मृतक का परिवार ब्रेन डेथ, अंगदान, ऑर्गन डोनेशन इन बारे में जानकारी रखता हो तो हकीकत को स्वीकारना और अंगदान करवाना थोड़ा सुलभ हो जाता है, ऑर्गन डोनेशन हो पाता है। आपके देखने सुनने में अगर कोई ब्रेन डेथ का केस आ जाए तो कृपा कर अंगदान करवाने के लिए हर संभव, हर कोशिश प्रयास करें। यद्यपि ब्रेन डेड हो चुका होता है तो भी बाकी शरीर जिंदा होता है। ऐसी स्थितियां बहुत दुर्लभ होती है और उनका अंगदान करवाना जरूरी है। अंगदान के लिए सरकार ने ZTCC, डोनर ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की हुई है। ब्रेन डेथ डिक्लेयर होने पर अस्पताल के सोशल वर्कर संबंधित परिवार को अंगदान के लिए राजी करने का प्रयास करते हैं। उनका ZTCC के साथ निरंतर संपर्क रहता है। ZTCC का नेशन वाइड नेटवर्क है। अंगदाता के परिवार की सम्मति प्राप्त होते ही ZTCC तुरंत हरकत में आती है। वेट लिस्ट, क्रॉस मैचिंग, यात्रा की दूरी आदि का विचार किया जाता है। उस शहर में वेट लिस्ट पर अगर रेसिपिएंट नहीं हो तो समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्णय लेना पड़ता है। जैसे कि अंगदाता के शरीर में से हृदय को निकालने के बाद 4 घंटे के भीतर रेसिपिएंट के शरीर में उसका रोपण होना जरूरी है। ग्रीन कॉरिडोर किए जाते हैं, जनता स्वेच्छापूर्वक सहयोग करती है और सरकार ने आदेश भी दिया है कि अंगदान को ले जाने वाले एरोप्लेन को, विमान को प्राथमिकता दी जाए, प्रायोरिटी दी जाए। मुझे याद है एक बार एयरफोर्स के फाइटर प्लेन सुखोई से पुणे से दिल्ली तक अंग पहुंचाए गए। शरीर में से प्राण पक्षी उड़ जाते हैं तब उस शरीर की राख है, हाथ जले जैसे लकड़ी, केश जले जैसे घासा, दोनों ऐसी काया जली गई, कोई ना आया पासा। ये सोने जैसा बदन यूं जलेगा जैसे लकड़ी जलती है, वैसे हड्डियां जलेगी, जैसे घास जलता है वैसे हमारे बाल जलेंगे। इसमें से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई ना आवे पासा, और आखिर ये तन खाक में लेगा। या सूफी संत बाबा फरीद फरमाते हैं, वे फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डली, ना मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे, ना कर बंदिया मेरी मेरी, नाए मेरी नाए तेरी, 4 दिना दा मेरा दुनिया, पैर मिट्टी दी बनाटी। सब जीवों की यही मिट्टी दी बनाटी। मगर इस शरीर की एक एक इंद्रियां इतनी बेजोड़ है। हमारे शरीर में एक पंप है जो दिन के 24/7
साल के पूरे 365 दिन बिना रुके नॉन स्टॉप 70, 80, 90 साल तक सेवा देता है। कोई एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं, कोई डाउन पीरियड नहीं। दिखाइए कोई ऐसा पंप जो हमारे हृदय का काम कर पाएगा। करोड़ों की लागत लगाकर भी ऐसे इक्विपमेंट को बनाना नामुमकिन है। अपना काम होने के बाद ये बेशकीमती अंग अगर किसी के काम आने वाले हो तो देने चाहिए या नहीं, उनकी वजह से किसी की जान बचती हो तो देनी चाहिए या नहीं। इसी वास्ते हम कहते हैं गाड़ियां ने जलाई है, जिंदगी की जगमगाई है। डू नॉट बर्न, डू नॉट वरी, डोनेट लाइफ। इन अनमोल अंगों का दान करे, जीवन प्रदान करे। मैं अभी एक बात बताता हूँ, आप में से संभव है कि नहीं किसी लोग क्या है मणिपाल के रहने वालों ने इस लड़की को कहीं देखा हो। Has anyone from Manipal seen or met with this girl? ये श्रेया है जो पुणे से है और मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करती थी। 4 साल पहले सितंबर 2016 में पुणे से मणिपाल जाते समय बस की दुर्घटना में श्रेया के दोनों हाथ काटने पड़े। उसने एडवांस प्रोस्थेटिक्स भी लगाए, लेकिन वो उनसे खुश नहीं थी। श्रेया की माताजी ने खूब तलाश की, इंटरनेट छान मारा और 1 साल बाद वे कोचिन की अमृता इंस्टीट्यूट में पहुंचे और ट्रांसप्लांट के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया। उन्हें बताया गया कि लंबा समय लग सकता है क्योंकि इसके पहले जो हैंड ट्रांसप्लांट के केस हुए थे उनको साल भर से ज्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ी। तो ये लोग भी वापस आकर पुणे से फिर से जाकर कोई मकान फ्लैट किराए पर लेकर वहाँ कोचिन में रहने की सोच रहे थे, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं होता है, लेकिन जब भी मिलेगा उसके तुरंत बाद कुछ ही घंटों में ट्रांसप्लांट करना जरूरी होता है। ये लोग होटल पहुंचकर अगला प्लानिंग कर ही रहे थे कि अमृता इंस्टीट्यूट से फोन आया कि फौरन चले आओ। उन्हें लगा कि कुछ जानकारी या कुछ टेस्ट करवाना बाकी रह गया होगा, इसलिए ये लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे। फटाफट वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। एक 20 साल के युवक का एक्सीडेंट हुआ था और उसको ब्रेन डेड करार दिया गया। उसके परिवारजनों ने अंगदान करने की स्वीकृति दे दी थी। यहाँ मैं बता दूं कि अंगदान करने को राजी होने वाले परिवार भी हाथों का दान देने को अक्सर हिचकिचाते हैं, क्योंकि हृदय, फेफड़े, किडनी, लिवर आदि सब शरीर के अंदर होते हैं, हाथ तो बाहर दिखाई देते हैं और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन में उसे बिना हाथ का देखना एक बड़ा ही मुश्किल फैसला होता है। पर अमृता इंस्टीट्यूट के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि एक 19 साल की लड़की को हाथों की जरूरत है और इस महान परिवार ने कहा जो कुछ भी काम आ सकता है ले लीजिए। 9 अगस्त 2017, 9 अगस्त 2017 को ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया चली। 13 घंटे चली। उसमें 20 सर्जन और 16 एनेस्थेटिस्ट शामिल थे। श्रेया 1.5 साल कोचिन में रही। उसे इंटेंसिव फिजियोथेरेपी दी गई। पेरिफेरल नर्व्स का काम शुरू होने में समय लगता है और सेंसेशन इतनी धीमी गति से आता है कि रोजाना 1 या 2 मिलीमीटर की गति से आगे बढ़ता है। अब श्रेया अपने नए हाथों से बहुत कुछ काम कर सकती है। उसके नए हाथ, जो कि अगस्त 2017 तक केरला के 20 वर्षीय युवक के थे, उन हाथों का रंग भी बदलकर अब लगभग श्रेया के रंग जैसा हो गया है। डॉक्टर्स को भी इस बात से अचंभा हो रहा है। श्रेया की सर्जरी की टीम में शामिल प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहित शर्मा कहते हैं, In a year or so, the lymphatic channel between the donor's hand and the host's body opens up completely to allow flow of fluids. It is possible the melanin-producing cells slowly replaced the donor's cells, and that led to the change. श्रेया के फिजियोथेरेपिस्ट के मुताबिक श्रेया के 3 नर्व्स में से एक ने तथा उसकी उंगलियों के स्नायु ने, मसल ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है, और कुछ ही समय वो शुरू हो जाएगा ऐसी उम्मीद है। श्रेया ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़कर पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में BA इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू कर दी। पिछले सेमेस्टर के सभी पेपर्स उसने अपने नए हाथों से खुद लिखे। 19 जनवरी 2020 को हम कर रहे थे। वहां से लौटने पर पुणे में हमारे एलन4 पार्टनर साने गुरुजी हॉस्पिटल ने ऑर्गन डोनर परिवार और ऑर्गन डोनेशन बेनिफिशियरीज का एक गेट टुगेदर 25 जनवरी को आयोजित किया था। श्रेया ने उस कार्यक्रम में अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाई थी।
और मेरे दोनों हाथ नहीं थे, तो मेरी पहली प्रायोरिटी थी कि मैं खुद से वॉशरूम जा पाऊँ या नहा पाऊँ। वो बेसिक नीड है हर एक पर्सन की। और मैं रोज अपनी माँ को तो ऑलरेडी थी डिपेंडेंट, बट कितने सालों तक। और ये सिर्फ ट्रांसप्लांट कराने के बाद काम खत्म नहीं होता है, इसमें पेशेंट से बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऑलमोस्ट ट्रांसप्लांटेशन के 1 साल तक तो फिजियोथेरेपी करना ही पड़ता है, नहीं तो आपको जो बेसिक फंक्शनैलिटी है हाथों में वो आएगी नहीं और आपके हाथ काम नहीं करेंगे। अभी ट्रांसप्लांटेशन को 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से ऊपर। मैंने कहा था वॉशरूम एक्टिविटीज़ वो मैं करती हूँ, नहाना और खाना पीना, कपड़े पहनना। और इनफैक्ट मैंने अभी कॉलेज से ब्रेक लेना पड़ा था इन सब के कारण। मैंने लास्ट ईयर ही कॉलेज फिर से ज्वाइन किया है। अपने सेमेस्टर के सारे एग्जाम्स मैंने खुद लिखे हैं। वेरी गुड। आप 9 महीने लग गए मुझे ठीक से लिखने के लिए, बट लिखा मैंने। वेरी गुड। वेरी गुड। मैं एक और बात बोलना चाहूँगी। यूजुअली ब्रेन डेड डोनर जो होते हैं उनकी फैमिली से हम मिल नहीं पाते क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द लॉ। बट मेरे केस में जो है, उस वक्त मैं एक ही थी पूरे इंडिया में जिसका हैंड ट्रांसप्लांट हुआ, और उनको भी मालूम था, उन्होंने ही हाथ को डोनेट किया। तो मैं उनसे मिली भी थी अराउंड 2 या 3 महीनों के बाद ट्रांसप्लांटेशन के। और उनके पिता ने सिर्फ यही बात कही कि उन्होंने जो भी ऑर्गन्स डोनेट किया है पूरे दिल से डोनेट किया है। मतलब उनको कुछ था नहीं कि वो डोनेट करे, बट फिर भी उन्होंने किया। और उन्होंने एक और बात कही कि वो अपने बेटे के हार्ट को डोनेट नहीं कर पाए क्योंकि कोई वेटिंग रेसिपिएंट था नहीं। एंड वो अपसेट थे इस बात से कि हार्ट किसी को मिल नहीं पाया। कितने लोग होते हैं जो ये बात बोलेंगे अपने बेटे को गंवाने के बाद। ट्रांसप्लांट हुआ था और जिसकी कहानी की शुरुआत मणिपाल की यात्रा से होती है। हम कोचीन के उस परिवार को नमन करते हैं जिसने अपना बेटा तो खोया लेकिन हिम्मत बनाए रखी, कितने लोगों को जीवन का दान दिया। इन दिनों लोग दफ्तर में दिन रात तक काम करते हैं। कई दफ्तरों में ऐसा एक बोर्ड लगा रहता है कि सबसे आखिर जाने वाले ने जाते समय सब दिए बुझाने हैं। लेकिन हमारी मांग इससे ठीक विपरीत है। हम कहते हैं प्लीज टर्न ऑन द लाइट्स व्हेन यू लीव, क्योंकि हम न रहेंगे, तुम न रहोगे, फिर भी रहेंगी निशानियां। और इसके लिए नेत्रदान या अंगदान से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। अब इसके आगे आपके सवाल और मैं आमंत्रित करूंगा, और सवाल का जवाब देने में मेरे साथी शबीर भाई और जीतू भाई को भी आमंत्रित करूंगा। मगर उसके पहले आज अभी मुझे एक सतीश शाह IPP रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद से एक सवाल आया है, जो मैं पहले उसको लेता हूं, फिर आपके सवालों को लूंगा। सतीश शाह मुझे लिखते हैं, माई रिक्वेस्ट इज you to please clear if possible myths about most people thinking that after donating organs they will face problems in next birth. I have heard people talking about this. I can be wrong but wanted clarification. मैं इसके जवाब में सतीश जी कहना चाहूंगा कि पुनर्जन्म का सिद्धांत कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा की अगली गति उसके कर्म फल निर्धारित करते हैं। इसीलिए कहा गया है गहना कर्मणो गति। आत्मा करता है और शरीर उसका साधन है। आत्मा शरीर के माध्यम से जो भी कर्म करता है उन कर्मों का कर्म बंध बनता है। कर्मों का फल बुरा या भला भुगतना पड़ता है, कभी इस जन्म में या कभी अगले जन्म में। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा शरीर में है तब तक ही उसके कर्मों का बंध होता है। नेत्रदान तो मरणोपरांत होता है। आत्मा ने शरीर त्यागने के बाद की क्रिया है, इसलिए उसका कर्मफल दिवंगत आत्मा के साथ नहीं जोड़ता है। दूसरी बात, अगर जीते जी आपने किसी की आंख निकाली हो, किसी को अंधा बनाया हो, तो संभव है कि इस सिद्धांत के अनुसार आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा, आप अंधे बनेंगे। लेकिन ये बात नेत्रदान करवाने वाले डॉक्टर्स को भी लागू नहीं पड़ती। सिर्फ जिंदा आदमी की आंख निकालने वाले को यह कर्म बंधेगा। मृत्यु के पश्चात मृतक के शरीर पर जो भी क्रियाएं, जो भी संस्कार होते हैं,
वो सामाजिक जिम्मेदारी होती है। जैसे मृतक के शरीर को अग्नि दिलाने वाले को जलाने का पाप नहीं लगता, उसी मुताबिक डॉक्टर्स को भी ये पाप नहीं लगता है। और तीसरी बात, जीते जी अगर आप नेत्रदान का संकल्प करते हैं, दृष्टि का दान देने की बात सोचते हैं, तो दान की महिमा तो सभी शास्त्रों में गाई हुई है। दान का फल अगर मिला तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं। इसलिए अगले जन्म में अंधे बनोगे, इस डर को भी कोई आधार नहीं है, उसे मन से हटा दीजिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो धर्म पुनर्जन्म नहीं मानते, उनका भी एक सवाल होता है। अगर हमारी आंखें निकाली गई तो कयामत के रोज हम अल्लाह को कैसे देख पाएंगे? इसका जवाब है कि कयामत के रोज सब रूहें जाग उठेगी और उनका फैसला होगा। कब्र में लिटाने के बाद जिस्म तो गल जाना है, कयामत के रोज रूहें जागेंगी, न कि जिस्म। आप रूहानी आंखों से अल्लाह को देखेंगे, न कि जिस्मानी आंखों से। इसलिए आंखों के निकाले जाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। सन 1982 में कैरो की प्राचीन अल अजहर यूनिवर्सिटी में इस्लामिक धर्मशास्त्रों के विद्वानों की, उलेमाओं की मजलिस हुई और उसमें एक फतवा जारी हुआ, जिसके लिए कुरान के सूरा 5:32 का आधार है। उसमें जिस किसी का आदमी जान बचे, उसने इंसानियत को बचाया है। इस फतवे के मुताबिक इस्लाम के मानने वालों के लिए नेत्रदान जायज करार दिया गया है। और इस फतवे के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उल हक ने अपनी आंखें दान देने का, कोलंबो की आई डोनेशन सोसाइटी को देने का निश्चय जाहिर किया। जिया उल हक राजनेता के रूप में जो भी हो, इसमें दो राय नहीं होगी कि वे अत्यंत कर्मठ, श्रद्धाशील, चुस्त मुसलमान थे और जो बात इस्लामी धर्मशास्त्र के खिलाफ होगी उसे वे कतई स्वीकार नहीं करते थे। मेरे ख्याल से मेरे सवाल का जवाब दे दिया है। अब आपके जो भी सवाल होंगे आमंत्रित है। Please unmute yourself and ask the questions, please. Papa, may I ask a question? Yes. Please. She's my daughter from London. Edna. Good evening, everyone. And Rotary Club of Manipal, thank you very much for organizing this. A chance for me to learn more about the work that my father does. And Papa, Jitu Kaka, Shabir Uncle, Oni Kaka, I see you there as well. Congratulations. We're very, very proud of you, of all your achievements. The question, Papa, is you talked about how long the organs survive after death. Given the situation we all find ourselves in with COVID, the question is, do the organs get infected by COVID? And if not, is there a case to be made for the Rotary clubs to work with various hospitals in your locality with the doctors and try and source organs and eyes in the case of death to be used for recipients? Shabir bhai, do you want to answer this? Shabir bhai? Stop screen sharing, sir. See, Chitna, it is like this, that we don't know really what happens after the COVID, once somebody dies due to COVID. And normally their organs, they spread COVID germs in the other bodies. So such a thing, I am not aware whether it is advisable or not, but nevertheless, it needs further inquiry and we will certainly inquire about it. Let me tell something about it, Shabir bhai. Whenever we take eye donation, corneas, whenever जब निकालते हैं तो उसके साथ एक ब्लड सैंपल भी मृतक का लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि अगर एनी चांस डिसीज करने की कोई भी संभावना जरा भी होगी तो वो रिजेक्ट किया जाता है। हम केवल उतना ही श्योर शॉट आगे काम करना चाहते हैं कि जिसमें कोई तकलीफ ना हो और काम अच्छा हो। अगर कोविड के बारे में अभी असमंजस की स्थिति है तो अभी इस साल 6 महीने की सभी प्रक्रिया बंद है। All eye banks are not getting any eyeballs because इसमें कोई भी चांस ले जरूरी नहीं है और इसी कोई
ऐसी इमरजेंसी नहीं होती कि उसका अभी 6 महीने से आई डोनेशन बंद पड़ा है तो कोई फर्क पड़ने वाला है। वही द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू yes please. Yes, Yeah, Pradeep sir. Yeah, Pradeep sir, can you please close your sharing session? Yeah. Thank you. I will need it, Prashant, after 1 minute. Okay. Yeah. We can't Please see bear that. with me. Pardon me. Yeah, we cannot spotlight. That's why I requested to. Yeah, it's not a problem. And Papa, it's also using your data. Okay. So, any another question, please? Did I answer you, Chandna? Yes, thank you. Neeta can answer. Is she still there? Neeta? Are you here? Yeah, I'm here. Yeah. Can you answer the question? Yes. Nita, nice to see you. And Hello. Congratulations, you are doing a great job there in Manipal. Thank you, sir. You are doing even more wonderful job. Thank you for all the help. For So we are just propagating, but you are actually collecting. Your work is more relevance. Okay, so here in KMC, what we are doing during this COVID is, during every eye donation, we are taking a throat swab. So this throat swab will be tested, RT-PCR will be done, and only if it is negative, we will go ahead with the transplantation. If it is positive, it will have So to be during this period, you are collecting corneas? If they die of COVID, can you use the cornea? No, if they die of COVID, we cannot use the cornea. That's a good thing. Correct. Yes. Continue, sir. Any other question? No? No, sir. Shall we proceed? I didn't understand the reason that you told about the religious implications of. How did you answer the person who said that it is? Whether we'll become blind in the next Janma thing? How did you answer it? I didn't understand your Hindi. Which one is karma? Okay. That's what we find it difficult. What? There was a talk the other day about a person who is using it for cadaver, for anatomy. Yes. He was asking whether there is any kind of a shloka or something that says that you can give your body for anatomy dissection, but still we go up to heaven. Is there anything like that in Hindu scriptures? Convince the people that you can donate your body for even anatomy dissection. I can cite you one example, not the shloka. Shloka I may find out later on, and then I'll contact you. There is one story, one katha of Rishi Dadichi. Dadichi Rishi was a great tapasvi, और जब वृत्तासुर एक असुर बहुत बढ़ गया था और उसको वरदान था कि no weapon made of metal or wood, लकड़ी का या धातु से बना कोई भी शस्त्र उसको मार नहीं सकता था। तो उसकी वजह से वो बिल्कुल बेखौफ होकर बेडर होकर सब जगह सबको सताने लगा था। तो इंद्र देवता ने जब इसके निवारण की योजना बनाई तो उसको बताया गया कि भाई पृथ्वी पर एक दधीची ऋषि है जिनकी हड्डियां तपश्चर्या के कारण बहुत मजबूत बनी है। So he went to दधीची ऋषि और उनको उन्होंने प्रार्थना की कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है। तो दधीची ऋषि ने तत्काल उस समय उनको कह दिया कि भाई मेरी हड्डियों से आप बनाइए, मेरी हड्डियों से जो भी वज्र बनेगा उससे आप वृत्तासुर का वध कर पाएंगे। और उन्होंने उसी समय तत्काल अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और अपनी हड्डियां इंद्र के हवाले कर दिया। इसमें अगर इस स्टोरी में अगर हम माने तो इसमें उन्होंने प्राणोत्याग इसलिए कर दिया कि वो समाज के काम आए। जो भी हमारे एनाटॉमी के लिए बॉडी देते हैं वो इसीलिए काम आती है कि इसमें हमारे भावी डॉक्टर्स को शिक्षा मिलती है। इसलिए ये पुण्य का काम है। और महर्षि दधीची को जब हमारा देश नमन करता है तो हमारे बॉडी डोनर्स को बॉडी डोनेशन करने वालों को भी उसका ही उन्होंने उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके प्रति सम्मान करना चाहिए।
I'll tell her the story. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. So, you want to share anything, sir? या अभी इसके बाद अगर आपके सवाल नहीं होंगे तो हमारे शबीर भाई आपको एक प्लेज देना चाहेंगे, इसमें आप सब शरीक होंगे ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। आज हम अपने आप से एक वादा करने जा रहे हैं। और मेरा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्या? No, sir. यस, तो शबीर भाई आप Yeah, I am ready. Please take this pledge. Please repeat after me. Please I hereby pledge. Please repeat after me. I hereby. I am not listening to anybody. I am not hearing anyone. Okay, I will repeat, continue repeating. I hereby pledge. I hereby pledge To donate all my organs after death. to donate all organs after death. I pledge to spread awareness about organ donation. I pledge To donate awareness of organ donation In the society and enable as many persons as possible. in the society and enable as much as as many persons as possible To enjoy a better life. to enjoy a better a better life. Whenever I shall hear of anybody's demise, Whenever I heard of anyone's demise, I shall immediately do all I can I shall immediately do all I can to convince the family and friends of the deceased to convince the family and friends of the deceased to donate all organs if possible. to donate all possible as possible. Otherwise, at least eyes. otherwise at least Otherwise, at least the eyes. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू ऑल। What is it you said, sir, about that death certificate, adding that eye donation to it? Yes. Quite understand. Yes. I wanted यस to. करिजा जी। No, sir, you said that you asked the municipality to add something about eye donation in the death certificate, isn't it? Yeah, in Maharashtra, that is a government government GR that has directed all the municipal corporations and municipalities to print eye donation column, whether they have gone for eye donation, they have would they like to do go for eye donation, and each and every certifying doctor who issues the death certificate will ask and write in that column whether yes or no. So that is the one point where the checkpoint where they have asked them to check whether they can inform them, because that particular moment is important. If somebody suggests that time, the eye donation takes place. Thank you. Nitu bhai. Yes, sir. I think yeah, Prashant, you can take over now. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Rotarian Pradeep Munot, sir, for giving informative talk on noble deed. My request to you, I think you were, Prashant, you were not there when we came to Manipal.
And my first request to all the Manipal Rotarians was that sir is a banned word. We are all Rotarians. We are brothers and sisters. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. I was there, sir. I was there. Second day I was there. Yes, second day you were there. Yeah. Thank you, Rotarian Pradeep Munot, for giving informative talk on noble deed, eye and organ donation, and explain its power. Thank you, sir. Now I request Zonal Lieutenant Rotarian Guru Prasad to give a final remark. Guru Prasad, can you please unmute? Unmute. Am I audible? Yes, yeah, we can hear you. Good evening, everyone. Respected guest, Speaker Rotarian Pradeep, Assistant Governor Rotarian Anand Udyawar, President and Secretary of Rotary Club Manipal and Rotary Club of Pune Town, and everyone in the meeting, greetings to all. It's my immense pleasure to participate in today's program, which is touching upon a very new aspects of life. We always think of constructing a mansion or storing crores of money for our children, thinking that our name will last ever after death. This can be done in a very noble way. Instead, by donating our eye or any organ, we still live in that person's even after our death. It is an amazing achievement of medical science that one person can help 10 other people to get the better life. Let's all make up our mind to think about this and register ourselves for organ donations. Now it is an even more easier. We can just renew our driving license where we get an option to indicate our willingness to become a donor. My heartfelt gratitude to all the people who are working in this field. Rotary will surely brings in awareness and bringing up a new changes in the mindset of the people. Thank you, Rotarian Prashant Hegde and team for conducting such a program and for giving me this opportunity. My best wishes to all such noble causes. Thank you all. Thank you, Rotarian Guru Prasad, for giving the final remark. Now I request Rotarian Geeta Kaushik for making an announcement. Yeah. Hello, can you hear me? Yes. Good evening, Rotarian friends of Rotary Club Manipal and Zone 4, all clubs of Zone 4 and Rotary Club Pune Downtown. Now for the Pune Downtown Rotarians, I would like to introduce myself. I'm Rotarian Geeta Kaushik. I'm a practicing lawyer on civil side. I joined Rotary Club then Udupi Manipal in 2012-2013. I was introduced to this prestigious club by my mentor, Rotarian Shaila S. Rao. Then in 2017-18, I became the president of this prestigious club. And now presently, I am the chairman for Pulse Polio. Now, you all know that on 24th of this month, we observed World Polio Day. So we observed World Polio Day by visiting the pediatric department at KMC, along with the head of the department and community service department person, and also our DGN, Dr. Gauri, and our vice chairman of Pulse Polio, Jai Vittal sir. And we educated them, and we also displayed a video relating to polio. And we are in connection with this. We have also got printed books, coupons containing 20 coupons in each book, and each coupon is costing $1, that is rupees 75. So I also request our club members, because these coupon books are available at the reception counter of Sonia Clinic and also with Rotarian Jai Vittal. And I request all our members to donate
to eradicate polio as generously as possible. And I also request the Rotarians of our club to directly donate and directly send your money to the polio fund, so that you can earn points. So this is announcement which I would like to make on behalf as a chairman for Pulse Polio of our club. Thank you very much. Thank you, Prashant, for giving me this opportunity. And thank you, Rotarian Firoz Master, President of RC Downtown. It was a very educative and very interesting topic which we had. And I also thank Pradeep Munot, who is a guest speaker and who has given a very informative and very interesting talk. Thank you very much, sir. Thank you, Prashant. Yep, thank you, ma'am. Now I request Rotarian, Anne Lavanya to deliver a vote of thanks. Yep. Yes. Good evening, everybody. Am I audible? Yes. Yeah. I have been entrusted with the pleasant duty of giving vote of thanks for today's meeting. I begin with the heartfelt thanks to our guest speaker, Rotarian Pradeep Munot from Rotary Club Pune Downtown, for his eloquent, informative, and all-encompassing talk on organ donation, including eye donation and its promotion. Thank you very much, sir. That was excellent. This zonal level meeting of Zone 4 by Rotary Club Manipal and Rotary Club Pune Downtown was hosted and I understand organized by Amit Arvind. Sincere thanks to Amit. A big thanks to the President of Rotary Club Pune Downtown, Rotarian Firoz Master Art, and to our President, Rotarian Prashant Hegde, especially for the welcome address. Sincere thanks to Rotarian Karunakar Shetty for the very thoughtful thought for the day. Sincere thanks to the guest of honor of today's meeting, Rotarian Anand Udyawar, Assistant Governor Zone 4, for his introductory speech with all the necessary information. Rotarian Dr. Girija, who has the talent of making everybody feel special. Special thanks to you for introducing the guest speaker, Rotarian Munot. And our thanks to another guest of honor of today's meeting, Rotarian Guru Prasad Kamath, Zonal Lieutenant, Zone 4, for his closing remarks. And special thanks to the, Rotarian Geeta Kaushik for the announcements. And our sincere thanks to all the Rotarians and of Pune Downtown Rotary Club and from Zone 4 of our district for attending the meeting. Thanks once again. Thank you, Anne. Dr. Lavanya, who is practicing ophthalmologist at Dr. A.V. Baliga Memorial Hospital. Thank you, ma'am, for delivering vote of thanks. Now I request everyone to rise up for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Nine
ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರು. I know. I was wondering what the hell now. Thanks, Lavanya. Thank you. Mute everybody. ಪ್ರಶಾಂತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Thank you. Meeting it. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Very much. Hi, hi. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Pleasure interacting with you all again. Such a pleasure. Good night. Good night. Good night. Hi, Pradeep sir. I want the story to be sent. Unmute yourself. Yeah. Yes, Girija, you asked something? No, just send me that story, sir, again. Which story? That Dadichi? Hmm. Okay, I'll write down. Was it okay, ma'am? Yeah, very nice. It was touching. Bye, no? Gauriji. Yeah. Bye. Good night. Thank you so much. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Bye. Bye. Bye, Sini. Thank you for coming.